Good evening, everybody. Salam and adab. Let's start the show with these beautiful, mesmerizing lines. वक्त आ गया है कि जिंदगी पे गौर किया जाए. सब कुछ तो कर चुके हैं. चलिए कुछ और किया जाए. Today, in our Ask the Master series, we have with us the maestro of Tukbandi and Kavita Numa items, a man whose voice spreads magic and more so does his thoughtful ideas and simplified answers to those difficult questions of life that baffle us at every step. He believes in spreading positivity and sharing vulnerability. For him, art should have a purpose. So let's welcome Mr. Vineet Panchi, the founder of Word of Mouth and the man behind the Good Poetry Project. Hello. Thank you for having me, Shweta. वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पे और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच मिस मल्होत्रा। आपने भी अपना कीमती वक्त हमारे पे अब इतना सारा लगा रही हैं, आपका भी शुक्रिया। It's our honor, sir. Sir, we have so many fans of yours on our platform और सब बेताबी से इंतजार कर रहे से आपसे बात करने का, आपसे रूबरू होने का, आपसे सवाल पूछने का और बहुत कुछ आपसे और जानने का। जी, I'm right here. बताइए, how can I help? You have me captive for the next hour or so. सर पहले तो हम शुरू करते हैं आपकी बहुत ही एक फेमस जो लाइन है that you call yourself a rolling stone. So I really want to know, like, why do you call yourself like so, and what all experiences you have been through during this journey of life? What all experiences have I gone through life? और हमारे पास 1 घंटे का प्रोग्राम। चलिए थोड़े सर। अच्छा, तो मैं खुद को रोलिंग स्टोन इसलिए कहता हूँ क्योंकि रोलिंग स्टोन की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। रोलिंग स्टोन उस किस्म के लोग होते हैं जो एक जगह नहीं टिकते, और मैं एक जगह नहीं टिका। मैं उसको रिग्रेट कभी कभी करता हूँ, ज्यादातर नहीं करता। लेकिन मुझे बहुत जल्दी चीज़ों से बोरियत हो जाया करती थी, और जब भी मुझे बोरियत हो जाती थी मुझे लगता था आगे निकल जाना चाहिए। इसलिए मैं कभी भी किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक नौकरी, किसी एक बॉस के साथ, किसी एक काम के साथ नहीं टिका। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, और दोनों के दोनों हमारे जैसे रोलिंग स्टोन्स को झेलने पड़ते हैं। तो मैं दुकानों पे काम किया है, मैंने रिटेल में जूते बेचे हैं, स्पीकर्स बेचे हैं, फिर मैंने क्या बोलते हैं बीपीओज में काम किया है, फिर ट्रेनिंग की है, फिर एचआर किया है, फिर म्यूजिक में काम किया है, फिल्म्स बनाई है। तो कई बार मुझे लगता है कि बस अभी 1-2 साल और चलेगा, फिर कुछ और नया करना। तो इसलिए आई फाइंड इट क्वाइट नाइस टू कीप switching roles and finding new things to do, hence Rolling Stone. But sir, I personally feel that also needs a lot of courage to switch over from one place where you are, getting some, good package and all, and then moving on to another. That also requires a lot of courage. उसके लिए भी हिम्मत चाहिए सर, एक जगह से निकल के। नहीं, वो बाद में पीछे देख के लगता है कि करेज चाहिए, थोड़ा सा I mean idiotic behavior चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि everything that you do and you quickly jump from one to the other is always right. I kind of disagree with that. करेज ज्यादा बेवकूफी और पागलपन का एक मिक्सचर चाहिए होता है। I think a lot of things that I did were as a much immature younger man. जरूरी नहीं है कि आज मैं वो सारी चीजें दोहराऊंगा। Naturally आप हर चीज से सीखते तो जरूर हैं, so one doesn't want to regret the mistakes, but I think one needs to find a balance. बहुत जल्दी किसी भी चीज को किए बगैर भी दौड़ना ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, I don't have a lot of depth in any of the industries that I've worked with. मैंने हर एक जगह थोड़ी देर काम किया है, so I miss that. लेकिन फायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सारी चीजों में फिर बहुत सारी वैरायटी मिल गई, and that is what I like. So there are pros and cons, but I wouldn't say it is courageous. Courage is a very different thing. Courage is when you have fear, when you know that things can go wrong and still do the right thing. I don't think I was doing everything for the sake of right. Sometimes I jumped for money, sometimes I jumped for excitement, sometimes I jumped for ये कंपनी मुझे यूएस ले जा रही है. So yeah, I mean, I think a little more balanced view of how I spent my past would be way better today. Right.
That's right. And sir, we have this Ask the Master series. And basically, in this series, we call the masters who have done really great अच्छा work in their fields, in respective fields, and various fields. तो जी हमारे जी जो दर्शक हैं वो खूब सारे क्वेश्चंस भेजते हैं जो वो जानना चाहते जरूर हैं, जो आपसे जरूर बात करना चाहते जरूर हैं, पूछना चाहते हैं। जरूर तो मेरे पास एक बहुत जरूर लंबी लिस्ट है, तो हम थोड़े थोड़े किसी जरूर किसी के क्वेश्चंस उससे पूछ लेते हैं उससे आप। पहले मुझे मैं आपके एक तो ये प्रोग्राम के टाइटल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता. टू कॉल एनीवन a master in anything means the person has to be really arrogant. The person has to be juvenile also to believe that one can ever be a master. Who can be a master in anything? By the time you realize कि आपको थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है, तब तक आपको रियलाइज होता है कि आपको कितना कुछ नहीं आता. तो well, I'm sorry, I didn't mean to create a नो नो, spanner in your branding, but I don't think I'm a master at anything. मैं अभी मैंने 2-3 साल पहले ये छोटी छोटी चीजें लिखनी शुरू की हैं. और हिंदुस्तान में आई थिंक ये प्रथा भी है कि अगर आप प्रचलित हो जाते हैं, अगर आपकी चीजें वायरल हो गई हैं, वो हो गई हैं, तो आपको लोग मास्टर कहने लगते हैं. A mastery of something and becoming a minor celebrity in something are two completely different things. मैं जो करता हूँ वो बहुत ही मीडियोकर पोइट्री है, क्योंकि आजकल social media allows a lot of mediocre things to go around and I'm grateful for it. So let me not pretend that I'm not. I'm happy कि ये हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो जो भी कर रहा हूँ मेरी तारीफ होगी तो मुझे मजा आता है. लेकिन that doesn't mean that I don't know कि मेरी पोइट्री की औकात कितनी है. So which is why I'm saying let's agree that there is a difference between well marketed people like me and yes, real masters. that's right, sir. But master is also a person who agrees to such a thing, who is so humble, and who is confessing in front of all his audience that he's still learning and still growing. वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना. अब चक्कर क्या है कि सच बोलना और चौड़े में सच बोलना इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट. ऐसा है नहीं. हम सारे के सारे अगर नॉर्मली बात करें तो हम सारे के सारे ऐसे ही हैं. सो वील जस्ट हैव टू काइंड ऑफ पुट द मुखौटास डाउन एंड Yes, that's right, sir. That's right. वही मेरा मकसद है आजकल बात करना. जी जी बिल्कुल सर. तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सर. प्लीज प्लीज और प्लीज कीजिए. और पहला सवाल है आमरीन की तरफ से आया है एंड शी इज आस्किंग if चलो you could अमरीन. spend a day with another popular author or poet, whom would it be? बहुत अच्छा सवाल है. एक्चुअली मैं एक की जगह दो लोगों के साथ बिताना चाहूंगा. मैं एक तो मेरे जो गुरु शायर हैं अंबर साहब, मैं उनके साथ बिताता भी रहता हूँ और मैं और बिताना चाहूंगा, क्योंकि ही इज नॉट जस्ट माई इंस्पिरेशन, ही इज ऑल्सो दी रोल मॉडल दैट आई हैव इन माइंड इन टर्म्स ऑफ राइटिंग पोएट्री. वो बहुत सिंपल पोएट्री लिखते हैं, ऐसी पोएट्री लिखते हैं जो दिल को छूती है. जानबूझ के कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते ये दिखाने के लिए कि देखिए हमें भाषा कितनी आती है. तो ये तो मुझे उनसे सीखने को मिलता है. दूसरा, मेरी बहुत बहुत पुरानी तमन्ना है, बहुत लोगों की तरह, कि मैं गुलजार साहब के पैर कभी छू पाऊं. उनकी उम्र भी होती जा रही है. तो और गुलजार साहब से इसलिए क्योंकि नेचुरली हम प्रभावित हैं. हिंदुस्तान में ऐसा कौन है जो कि फ्री फ्लो शायरी लिखता है और गुलजार साहब से इन्फ्लुएंस नहीं है. द गाय हैज the ability to create visuals out of words and take you to places that are not easy for most people to do. तो मुझे कभी कभी लगता है जैसे कि मैं उनसे बहुत कुछ स्टाइल के रूप में चुराता हूँ या उनकी सोच के तरीके में चुराता हूँ, क्योंकि अगर आपने शुरू से किसी एक शख्स को फॉलो किया हो तो आप चाहे ना चाहें उसका एक कोई छोटा सा पार्ट आप अडॉप्ट कर लेते हैं. तो मैं जी वैसे तो बहुत सारे शायर हैं और मैं बहुत ज़्यादा शायरों को बाय द वे जानता भी नहीं हूँ. मैं भी मतलब आई एम 70s बॉर्न, तो गानों के थ्रू गुलजार साहब को सुना है और इनके गाने सुन के लगता नहीं था जब आर डी बर्मन इसको कंपोज करते थे और किशोर कुमार गाते थे कि यार ये कुछ अलग है. इसकी कोई राइमिंग थोड़ी सी अलग है, इसकी बोलचाल अलग है, इसके अंदर वर्ड जो इस्तेमाल हुए हैं वो अलग है. तो नेचुरली वन स्टार्ट्स टू बिलीव. सो ही इज नॉट जस्ट एन इम्पोर्टेंट शायर और थिंकर फॉर अस, ही इज ऑल्सो समबडी हु opened up this whole new world for people like me कि हाँ ये भी बोल सकते हो. क्योंकि जब तक किसी ने किया नहीं और उसकी तारीफ नहीं हुई तो आप कैसे कहोगे कि ये भी मुनासिब है या ये भी मुमकिन है ना. जी बिल्कुल सही सर.
Very. अगला क्वेश्चन है सर सरिता शुक्ला से, and she's saying that sir, हेलो your positive attitude हेलो towards सरिता। life not only kept us going, but the stories narrated by you make us feel that the situations can be, tackled in a better way as well. So would love to know the secret behind your obnoxiously optimistic attitude. तो सरिता जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं हर समय ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता, न ही मैं हर समय खुश होता हूँ, और हो भी नहीं सकता कि कोई हर समय खुश रहे। सो लेट्स नॉट प्रिटेंड एंड लेट्स नॉट ट्राई एंड टेल पीपल कि ऐसा कोई भी शख्स है जो हर समय खुश रह सकता है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी मैसेजिंग मैं करूँ, जो लोग मुझसे इन्फ्लुएंस्ड हैं या जो मेरी बात सुनने को तैयार है, एटलीस्ट मैं उनको और गमगीन ना करूँ। मेरे हिसाब से आर्ट का मकसद होना चाहिए, कई बार नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी मेरी एंट्री लेवल आर्ट है उसका एक मकसद है, और वो मकसद मैंने खुद बना लिया है। उसका मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग सेल्फ अवेयर हों, मैं चाहता हूँ कि लोग अपने रिश्तों पे और ज़्यादा गौर करें, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से जिएं, और अगर मैं जो भी मेरे दिमाग में आता है वो भेजना शुरू कर दूंगा तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें लोगों को नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस करेंगी। तो मैं जो नेगेटिव लिखता हूँ उसको मैं फाड़ के फेंक देता हूँ, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, और जो मेरे को लगता है कि किसी के काम आ सकता है, किसी को प्रोत्साहित कर सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है, वो मैं भेज देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि if you were to look at any person very closely, we all have our dark sides and we all have our sad sides, and so but I've kind of filtered that and say कि I mean आपके पास खुशबू भी है, बदबू भी, आप जबरदस्ती कहेंगे नहीं ये सब दोनों मेरी हैं, तो मैं क्यों फैलाऊं? तो जो अच्छा लगता है मैं वो भेज देता हूँ, जो मुझे लगता है लोगों को ज्यादा पसंद है। वैसे भी दुनिया में बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेट्स नॉट ऐड टू दैट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ऑलरेडी इतने गम है, इतना कुछ है जिंदगी में, तो अच्छा थोड़ी खुशियां बांटेंगे तो ज्यादा कौन दुखी लोगों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है? अगर आपने बहुत अच्छी नज्म भी लिखी है लेकिन नज्म के एंड में आपको बहुत दुख हो रहा है, तो आप कहोगे रहने दे यार, मेरे घर पे ही बहुत है यार। डबल हो गया दुख फिर हमारा। क्या करना है यार, एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल। एंड आई मस्ट से सर, जो आपकी नज़में हैं वो इतनी सिंपल हैं, सिंपल वर्ड्स में लिखी गई हैं, एंड दे आर सो रिलेटेबल। जैसे परसों आई वाज जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद माय पेरेंट्स, and I was getting little impatient, with aging parents at times. I confess that you get little impatient with them. पर उसी वक्त शाम को मैंने आके आपकी वो सुनी माँ की बारी, तो वो मुझे लगा कि कितना ऐसे दिल को छुई, and I was literally in tears, and I realized that I was so wrong when I was talking to my mother and being little impatient. This is the time when they need us, and we are behaving like this. So बहुत ही उम्दा और बहुत ही हमें सिखाने वाली नज़में हैं आपकी, जो हमें एक्चुअली ट्रू पिक्चर दिखाते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अपने आप को बदलो, थोड़ा सा अपने आप को देखो कि क्या कर रहे हैं मायने में। हाँ, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है श्वेता। We don't start to ask ourselves all the hard questions. I don't think growth will ever happen. Yes. It's only when somebody shows us the mirror, जो कि कई बार ये नज़में जिसका काम करती हैं, जो पहले मेरे लिए भी करती है, फिर मैं उसको आगे लिखता हूँ। So any thought that crosses my mind which has made me think and I think that's something that I should also speak about. So Maa Ki Baari is one of them. The fact that we just need to be more patient with people who are now aging. Yes, that's true, sir. Very right. And next question we have from Rinalini Patro. She's saying that your tukbandi is tukbandi a natural flair, or is there any way to acquire it? If you can share some tips, tricks, or secrets with the aspirant writers. Read a lot of nursery rhymes in Hindi and English and tukbandi. Tukbandi कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है. It's a simple rhyming pattern जो आप करते जाते हैं और आपकी कविता तैयार होती जाती है. I think the first thing you need to understand is कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट न दिखाने की कोशिश करें. हमारी
स्पेशली भाषा के साथ क्या होता है कि when you try and use words for the sake of sounding really smart, then you try and pick up words that are difficult. I mean, Difficult. we all have difficult words in our vocabulary, लेकिन आप अपनी माँ के साथ बात करते हुए क्या आप जामुचे कहते हो, नहीं जी मेरे को वातानुकूलित एनवायरनमेंट में रहना है, मम्मी एसी चला दे, तो आपको जरूरी थोड़ी है कि जानबूझ के वो वाला वर्ड इस्तेमाल करना है. So that's one. The second thing is, listen, people like to hear that you're vulnerable. People like to hear कि आपको भी दर्द होता है. आपको हर बार लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब मैं तो बिल्कुल ही आयरन जैकेटेड हूँ और मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता. For example, a lot of people call me and say, we'd like you to come as a motivational speaker, and I keep telling them, listen, there is no such thing as motivation. People are genuinely motivated. You just need to keep them away from demotivation. One. And the second thing is, जब आप किसी से really connect करना चाहते हो, तो हमें already पता होता है कि वो कब सच्चाई से बात कर रहा है और कब नहीं कर रहा. हम इतने socially conscious हैं. मैं बड़े लोग देखे हैं. हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं है. तो अगर आप लोगों से सच्चाई से बात करो, मुखौटे उतार के बात करो और उनको ये बताओ कि देखिए मेरी जिंदगी में भी ये चीजें होती रहती हैं, then they connect with you better. और तुकबंदी तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बट आई एम सेइंग व्हाट इज द एक्सप्रेशन एंड हाउ डू यू create a simple expression that Right. people like. That really is what I do. Right, sir. Very nice. So basically, the thing is keep it simple and keep it clear. You should be clear with Yeah, yourself. I mean, जो आपको डरे बगैर आपको जो कहना है वो अगर आप कह दें और थोड़ी थोड़ी राइमिंग कर दें तो कविता बन जाती है. बहुत मुश्किल नहीं है. I think anyone can do it. Yeah, that's right, sir. There is a question coming up from Swati Garg, and she says, just a second. Sure. Yeah, her question is that we have seen that most of the popular orators speak with a lot of force and energy, sounding louder जी. than usual. So, is this the right I way know. to present even poignant poetry, or shall it be naturally spoken according to the subject? मिस गर्ग, आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम. हमें स्कूल में ना एक ही तरीके से बोलना सिखाया. सबको स्टेज पे खड़े होकर ऐसे प्रिज्यूम करना होता था जैसे 200 लोग बैठे हैं और 200 तक हमारी आवाज पहुंचनी है. और हम ये भूल गए कि अब वो स्टेज भी चला गया है, स्कूल भी चला गया है और वो बोलने का तरीका भी चला गया है. तरीका भी I really don't know. सही गलत तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई किस्म की पोइट्री आई थिंक जोर जोर की बोलनी चाहिए. लेकिन ज्यादातर पोइट्री आपको वैसे पढ़नी चाहिए जैसे कि पोएट चाहता है कि आप उस पोइट्री को पढ़ें. अगर आप पोएट के जज्बात समझ रही हैं, जो वर्ड लिखा है उसको, अब दर्द है तो दर्द की तरह बोलो, खुशी है तो खुशी की तरह बिल्कुल. बोलो. अगर उसने कहीं रुक के कॉमा लगाया है तो आप भी रुक जाओ. और अगर आप उसी तरीके से पढ़ो जिस तरह पोएट ने सोचा था और लिखा था, तो आई थिंक पोइट्री ठीक हो जाती है. आप हर चीज को एक तरीके से तो नहीं पढ़ सकते. अल्टीमेटली वी ऑल गेट मूव्ड बाय इमोशंस, and if you can start to see those emotions in the lines of whatever the poet has written, that's what makes a good orator to my mind. उसके साथ I think ये जो बहुत हमारी अंदर से सख्त जरूरत है कि हमें हर इंसान हमें देख के कहे कि यार ये तो बहुत ही पावरफुल है. I think this takes away from honesty. Right. क्यों बनना है पावरफुल? We need to be vulnerable, not powerful. It is okay to tell people के लिसन मुझसे गलती होती है या मुझे ये वर्ड नहीं आता. जैसे मेरे जो गुरु शायर है अंबर साहब, वो कहते हैं यार तेरा ना पंजाबी एक्सेंट आता है. और मैं उनसे कहता हूँ साहब मैं पंजाबी हूँ. व्हाई शुड आई हाइड द फैक्ट कि मैं पंजाबी हूँ? अगर मैं पंजाबी हूँ तो मेरी गाली भी वैसी होगी, मेरी बोलचाल भी वैसी होगी, मेरा खाना भी वैसा होगा. तो अब वो कहे नहीं तू इसमें ये मत लगाया कर पंजाबी. मैंने यार पाजी मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे को कोई शर्म थोड़ी आ रही. बिल्कुल. ठीक है, मैं पंजाबी हूँ तो मेरी दिखेगा जी. राइट. सो भावनाओं को समझ के उनके साथ पोएट्री बोली जानी चाहिए. सच्चाई से बोलिए, भावना अपने आप आ जाती है. मतलब इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है. बहुत ज्यादा सोच के बोलो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोलो, हाय ये मेरे बारे में क्या कहेंगे दुनिया, इतना सोचोगे तो फिर ऑथेंटिसिटी चली जाती है. तब तक जैसा दिल कर रहा है वैसे बोलो, जो आपका नेचुरल तरीका है वैसे बोलो. बहुत लोग हैं आपको पसंद करने वाले. एक जैसा बनने की, अब जैसे if you look at all the men today and all the women today and all the actors today, they all look the same. So after a while you say, okay, there is a concept of beauty, there is a concept of how men and women should look. Similarly, there is a concept of how we
believe things should be delivered. लेकिन अगर Yes. सभी वैसे करेंगे तो फिर I mean you really have to get into a beauty pageant to then win. But otherwise अगर आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं तो आपको पसंद करने वाले भी आ जाएंगे. बिल्कुल सही बात है सर. And moving on to the next question. This is जी. from Swati Tamhankar, and Hi, she's Swati. asking, could you please share the time when you failed but nevertheless bounced back? An inspirational incident from your life. So when I failed and I'm sorry I missed that part. And bounced back, but bounced back. ये तो पूरी जिंदगी है जी. ये इसमें खाली एक इंस्टेंस क्या है, मतलब जिंदगी का नाम ही यही है कि आप रिजिलियंट रहें. रिजिलियंस का मतलब ही यही है कि आप फेल होते रहें और बाउंस करते रहें. एवरी मॉर्निंग वी फेल एंड एवरी मॉर्निंग वी बाउंस बैक. बट मोर देन गिविंग यू एन इंस्टेंस, आई विल टेल यू व्हाई इट हैज kept me alive at least. Yes. Every time we fail, you can either look at how people are going to react to it and give yourself a label and say, there must be something wrong with me. Or you can say, well, I now know what not to do. तो मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे को तो खैर फेलियर्स की आदत है राइट फ्रॉम स्कूल. तो कुछ लोगों को होता नहीं है कि इतनी बार फेल हुए हैं, इतनी मुश्किलें पड़ी, हम पर आशा हो गई. मुझे तो नहीं लगता कि डर फेलियर से. इनफैक्ट मुझे कई बार सक्सेस से डर लगता है क्योंकि वो सिर पे चढ़ जाता है. तो मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि ये मतलब 2-4 दिन है, लोग पंखा झलते हैं, धरती पे रहो, पैर ऊपर ज्यादा मत करो. और मुझे पर्सनली सक्सेस के साथ जुड़ी हुई चीजों से बड़ा डर लगता है. Whether you like it or not, the moment you start feeling successful, there's a certain arrogance attached to it, which is quite. It comes naturally. How should I say it? Yeah. Well, it comes naturally, but it's all cognitive. तो पहले आप सोचते हो मैं सक्सेस हूँ, आप जैसे ही सोचना शुरू करोगे वो एरोगेंस की परत चढ़नी शुरू हो जाएगी. फिर आप लोगों से कंपेयर करके, क्योंकि जब आप अपने आप को सक्सेसफुल कहते हो तो कोई ना कोई तो फेलियर होता है ना, क्योंकि ये कंपैरेटिव है. क्लास में हर आदमी अगर फर्स्ट आता तो फिर तो कोई फेल और कोई पास नहीं होता. तो when you call yourself a success, you're automatically looking at somebody in a way that you're looking down. So look, we are all successes in various ways and we are all failures in certain ways. तो मैं बहुत सारी चीजों में फेलियर हूँ. I'm still trying to be a good parent. I didn't have very great relationships. I'm still struggling with health. So बहुत सारी चीजों में हम फेलियर हैं. बहुत सारी चीजों में हमने बाकियों से बेहतर किया. But just because बाकियों से बेहतर doesn't make us successful. It's only when you say जो मैं कल कर रहा था आज उससे थोड़ा बेहतर हूँ, आज मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, आज मैंने अपनी बेटी से बात कर ली, so I'm a little more successful from what I used to be. And that's how I look at success. Yeah, absolutely. So in fact मैंने एक छोटी सी नज्म लिखी थी, you should watch it when you get time, which really is my autobiographical understanding of how I've looked at success and failure. और इसका नाम था दौड़ की रफ्तार और मंजिल. कभी मौका मिले बिल्कुल सर. जी. अपनी दौड़ अपनी रफ्तार. अपनी दौड़ अपनी रफ्तार अपनी मंजिल. और मुझे ये बड़ा एक दिन स्ट्राइक किया कि मेरे साथ जो मेरे 2-3 दोस्त थे, दे केम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स. एक के फादर की पंसारी की दुकान थी, उसने जिंदगी में कभी अंग्रेजी नहीं बोली. उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ट्यूशन लगवा सके. मैं जब बाइक पे पहुंचता था तो वो आता था, तो नेचुरली द गाय वाज ऑलरेडी स्टार्टिंग विद अ डिसएडवांटेज. तो हमें ना कई बार लगता है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें लगता है जो भी किया हमने किया, वी गिव ऑल द क्रेडिट टू आवरसेल्व्स. और जब नहीं होता तो हम ब्लेम करते हैं. तो व्हेन यू लुक एट दिस गाइस, जो कि मेरे साथ पढ़ा है, मेरी जितनी अच्छी नौकरी नहीं की, पर ये भी तो देखो उसने भागना कहाँ से शुरू किया था. बिल्कुल. उसके पैर किस किस चीज से बंधे हुए थे. मेरे पास तो एक फादर थे जिन्होंने अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया, टाइम पे किताबें ले दी, नई अच्छी सोच से रूबरू करा दिया. इसके पास नहीं था. तो नेचुरली जब वो 12वीं क्रॉस करेगा तो वैसे ही कॉलेज होगा, फिर कॉलेज के बाद उसको वैसी नौकरी मिलेगी. तो टू लुक एट दैट एंड से कि देखिए मैं इससे आगे हूँ. कहाँ से आगे? उसकी देखो तो सही, उसका डिस्टेंस कहीं ज्यादा था. तो उसने 500 मीटर दौड़ा, तूने 200 मीटर दौड़ा, और तू कह रहा है कि मैं इससे आगे हूँ. तो दीज आर ऑल आई मीन फिलोसॉफिकल है, मेटाफोरिकल है, पर सोचने लायक चीजें हैं. I think we should look at each person's success depending on where they started from and how long have they running. और उनको कुछ रुक जाते हैं, कुछ नहीं रुकते. Yeah.
बिल्कुल सही बात सर। सर कुछ लाइन्स आप बोलना चाहेंगे उसमें से, नज़्म में से? मेरी दौड़। अच्छा, हाँ जरूर, मैं आपको पढ़ देता हूँ अगर आपको पसंद है प्लीज़ वो तो। सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तब तक कोई और सवाल है तो आप पूछिए, मैं तब तक वो पोम निकाल लेता हूँ। हाँ जी, ज़रूर सर। ये सवाल है सर रेखा मित्तल गुप्ता से, और वो कह रही हैं कि आई वुड लाइक टू नो द आर्ट ऑफ वीविंग अ स्टोरी इन पोएटिक फॉर्मेट। इसके लिए तो आपको पूरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ऐसे कैसे समझा दें? Sure, I'm sure you want to know the art of weaving a storytelling के बारे में बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल हैं। लेकिन आपने दो चीजें मिक्स कर दी हैं, एक है स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी द और अदर वन इज पोएट्री। स्टोरी टेलिंग थ्रू पोएट्री। तो पोएट्री। ये दोनों चीजें आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी, जैसे मैं भी खुद पढ़ता रहता हूँ। एंड आई थिंक it's not difficult to do. The first thing that I really remind people is कि आप मुझसे 5 मिनट में पूछ के तो नहीं बन सकते। If it has taken me a few years to do this, how या can I tell you in 5 minutes? लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप भी 4 साल लगाएंगी तो आप भी सीख सकती हैं। लेकिन उसके लिए शुरू करना पड़ेगा और लगेंगे पूरे 4 साल। ये आसानी से भी नहीं होता। पियानो अच्छा बजाने के लिए 10,000 घंटे चाहिए, तो 10,000 घंटे चाहिए, और जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप और सुदृढ़ होते रहेंगे, है ना? बिल्कुल सही। हाँ, दौड़ दौड़ हाँ जी। की रफ्तार और मंजिल। मुलाहिजा फरमाइए जब बोलेंगे, और जी। इरशाद। इरशाद। तो मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। um, ये मैंने लिखी इसलिए थी बिकॉज समटाइम्स पीपल लुक एट सक्सेस डिफरेंटली, एंड well, here's how I look at it. दौड़ दौड़ की रफ्तार और मंजिल कि जिंदगी में पहली बार जब रेस में भागा था, 8-10 लड़कों में शायद पहला आया था। मुझे याद है रिबन क्रॉस करते ही तालियां बजी थी, शोर हुआ था, किसी ने गोल्ड मेडल पहनाया था। 8-10 लड़कों में पहला आया था। मैंने उस मेडल को कई साल संभाले रखा। हर अव्वल आने वाले लड़के की तरह जब जब अव्वल महसूस भी करना होता था, दीवार से उतार के गले में डालने रखा, कई साल संभाले रखा। मुझे कैसा महसूस होना चाहिए ये दीवार पे टंगा गोल्ड मेडल बताता था। मुझे कैसा महसूस होना चाहिए ये दीवार पे टंगा गोल्ड मेडल बताता था। क्या दर्जा दिया था दुनिया ने मुझे, मेडल दीवार पे हो या गले में, कायदे से समझाता था। इसी मेडल की बिना पर फिर अगली दौड़ का न्योता आता था। मैं जिंदगी में किस दौड़ में दौड़ा हूं ये मेडल बताता था। जैसे जैसे लेकिन बड़े होते गए ये रेस, ये दौड़ें बदलती गईं। पर एक बार दुनिया के दिए मेडल की आदत पड़ जाए तो कहाँ छूटती है। और दौड़ते बहुत है पर दुनिया का मेडल सिर्फ जीतने वालों को मिलता है, यही दुनिया की रीत है, इतनी आसानी से कहाँ टूटती है। एक बार मेडल की आदत पड़ जाए तो कहाँ छूटती है। जो अव्वल आता है वो जीत जाता है, जो अव्वल आता है वो जीत जाता है, जो पीछे रह जाता है जितना मर्जी तेज भागा हो बेचारा, जहां मर्जी से भागा हो बेचारा, हारा हुआ माना जाता है। हारा हुआ माना जाता है, और इस तरह बचपन से हर दौड़ने वाले को जीत और हार का फर्क समझाया जाता है। जो अव्वल आता है वो जीत जाता है, जो पीछे रह जाता है हारा हुआ माना जाता है। कई बार सोचता हूं कई बार सोचता हूं जिन दौड़ों में मैं दौड़ा हूं कई बार सोचता हूं जिन दौड़ों में मैं दौड़ा हूं, जिस रफ्तार से मैं दौड़ा हूं, जिस तरफ मैं दौड़ा हूं, जिस दौड़ में मैं हजारों से अव्वल रहा हूं, जिस दौड़ को जीतने के लिए पागल रहा हूं, जिस दौड़ में सांसें फूली है, चोट लगी है, घायल रहा हूं, जिस दौड़ को जीतने के लिए पागल रहा हूं, ये दौड़ किसकी थी? ये दौड़ किसकी थी? जिस रफ्तार से ये दौड़ मैंने दौड़ी, जिस जगह ये खत्म हुई, कब मंजिल आ चुकी है कौन बताएगा? और इतने सारे जो दौड़ रहे हैं, सबकी मंजिल एक कैसे हो सकती है? किसको कहां रुकना है, कहां रुक जाना चाहिए, कौन समझाएगा, कौन बताएगा? मेडल जीतने के बाद आज जहां खड़ा हूं मेडल जीतने के बाद जहां आज खड़ा हूं, मेडल जीतने के बावजूद ये मंजिल से नजर क्यों नहीं आती? मैं जीत गया हूं, अब दौड़ना बंद कर सकता हूं, ऐसी कोई खबर क्यों नहीं आती? ये मंजिल से नजर क्यों नहीं आती? अब ऐसा है नया दिन है, मूड भी अच्छा है, अब दौड़े भी बाकी है मालूम है अब, लेकिन कौन सी मेरे काम की है, कौन सी बेकार, दुनिया नहीं बताएगी, मैं बताऊंगा। अकेले दौड़ूं या औरों के साथ, धीरे दौड़ूं या तेज, और कितनी होनी चाहिए मेरी रफ्तार, कौन सी दौड़ मेरे काम की है, कौन सी बेकार, मैं बताऊंगा। कितना दौड़ूंगा, कब रुक जाऊंगा, कितना दौड़ूंगा, कहां रुक जाऊंगा, मैं बताऊंगा। कब किस जगह को मंजिल कहूंगा, मैं बताऊंगा। अब अपनी दौड़, अपनी रफ्तार, अपनी मंजिल मैं तय करूंगा। कब जीत चुका हूं मैं बताऊंगा, मेडल मैं पहनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा।
थैंक यू। बहुत उम्दा सर, बहुत बहुत अच्छी है ये, बहुत ज्यादा अच्छी, इतनी गहराई है इसमें, थैंक यू, और एक्चुअली थैंक यू वेरी सच्चाई मच। और हमारे लिए इतनी अच्छी बातें हैं कि दुनिया की तरफ देख के नहीं डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, ये हमारे अंदर से हमें पता होना चाहिए कि कहाँ बिल्कुल, हमें रुकना है, क्या बिल्कुल। हमें कहाँ तक पहुंचना है। हाँ, और न सिर्फ खुद पता होना चाहिए, हमें बाकी लोगों को भी ना कॉन्स्टेंटली गिल्टी नहीं करना चाहिए। यस। हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स, ऐसा है ना, जब आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहाँ पे कि लेट्स से अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडर प्रिविलेज्ड, तो आप जानबूझ के मर्सिडीज खरीद के तो अपने घर के आगे नहीं खड़ी करते ना, या करते भी हो तो तुम बहुत ही नासमझ होगे। सिमिलरली when we know something and when we constantly parade what we know in front of people who might not know, राइट। then it only shows very juvenile, immature behavior. It doesn't show that you're smart. It shows that बिल्कुल। you have a huge need to be recognized by people who might be underprivileged in a certain area. किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास दिमाग होता है, किसी के पास looks होती है, किसी के पास कुछ और होता है. I don't think parading that is important. So everyone, I mean, you can be a really good friend or a really good citizen of a certain community if you can make other people feel good about what they have by not constantly showing, where you were right. So I think it's also important to see it from that perspective. That's right, sir. Absolutely right. Hmm. True, sir. Okay, now moving on to the next question. This question is from Neetu जी. Asnani. She's repeating Hello, the Neetu. same lines that I spoke in the beginning. कि वक्त अच्छा. आ गया है कि जिंदगी पे गौर किया जाए, सब कुछ तो कर जी. चुके हैं, अब कुछ और किया जाए. So she जी. wants to ask you that what is that और कुछ that you're willing to do? जी. जी. बहुत, ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी सवाल है, और ये जो मैंने दो लाइनें लिखी हुई हैं कि वक्त आ गया कि जिंदगी पे गौर किया जाए, दोनों में मेरे लिए मीनिंग है, इसलिए मैं इसको अपनी दीवार पे भी लगा के रखता हूँ और खुद से पूछता रहता हूँ कि यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ विच डज नॉट हैव अ डेली मीनिंग. थोड़ा सा तो पर्पस होना चाहिए. कई लोगों के पर्पस होता है, यार ये बच्चा बड़ा कर दूं, ये मकान बना लूं, देश के लिए कुछ कर दूं, फौज के लिए कुछ कर दूं, नेक्स्ट गाड़ी खरीद लूं. बट वट एवर योर मीनिंग इज शुड बी अपैरेंट टू यू, शुड बी समथिंग दैट ड्राइव्स यू. और इसलिए मैंने ऑनेस्टली ये लिखा था अपने लिए. मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी ये इस्तेमाल करूंगा कि वक्त आ गया कि जिंदगी पे गौर किया जाए कि जिंदगी फाइनली है क्या, व्हाट इज इट दैट वी आर फोकसिंग ऑन. सब कुछ तो कर चुके हैं, अब कुछ और किया जाए. So it reminds me that I must wake up every day and go after my meaning. And sometimes what happens is that सब कुछ तो कर चुके हैं, basically metaphorically for me means कि sometimes we start to sit at a place and say, यार ये मेरा औधा हो गया, या मेरे पास ये गाड़ी आ गई, या ये देखिए मैंने इतना accomplish कर लिया. And the moment you start feeling कि आप accomplished हो, you will not be able to do much. Right? The feeling that there is way more to do, way more to learn, way more to contribute is what drives you. तो सब कुछ तो Yeah. कर चुके हैं, अब कुछ और किया जाए, थोड़ा सा, और है ना, क्योंकि क्या पता किसका पटाखा कब बजेगा. वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू बी अराउंड. बट टिल यू आर अराउंड, इफ यू आर समवन हु इज ग्रोथ ओरिएंटेड, देन यू मस्ट आस्क योरसेल्फ कि जो मैं कल था, जो मैं आज हूं, मैंने उसमें कुछ सीखा, मैं कुछ बेहतर हुआ. क्योंकि एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यू कैन कंपेयर योरसेल्फ कि मैं यार, हर आदमी अपने आप को 20 साल पहले का सोच के सोचता है, यार क्या बेवकूफ आदमी था यार, कैसी हरकतें करता था. आई विश आई कुड टेल माय बॉस कि यार आई एम रियली सॉरी, मैं उस समय बहुत ही जुवेनाइल था. So those kind of things keep. So that's really where these two lines are coming from. right, that's nice, sir. And there's one question from my side which I want to ask. Please, please. You have started with the Hindustani transcreations of the beautiful जी. pieces. So how did this idea strike you? बहुत बार मैं सोचता था कि so I've been fortunate कि मैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू थोड़ी बहुत, ये सारी भाषाएं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, क्योंकि द कल्चर इज सच. माँ मेरी पंजाबी बोलती हैं, फादर मेरे अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी स्कूल में गया था, हिंदी जगह पे पैदा हुआ हूँ, और तो naturally one can. But when I went to this friend of mine, वो एक छोटा सा गुरुकुल चलाते हैं गुड़गांव के पास, डॉक्टर अबरोल करके, बहुत ही अच्छे आदमी हैं. उन्होंने जो भी अपनी डॉक्टरी से कमाते हैं, ये 300-400 बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, उनको सिखाते रहते हैं डांस, ये वो, पढ़ाई. तो मैं उनके पास गया तो वो कहते हैं, यार तुम इतनी अच्छी कविताएं पढ़ते हो, लिखते हो, और दुनिया भर में इतनी अच्छी चीजें, लेकिन ये मेरे बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे.
इनको मैं कैसे समझाऊं? तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हम इसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। और मैंने दो तीन जब ट्रांसलेट की, तो जैसे हमने पहली उठाई थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ where the mind is without या where the mind is without fear, विदाउट fear फेयर where the head is held high। तो हमने उसका ट्रांसलेशन किया, जहाँ दिल में कोई डर ना हो, जहाँ झुका कोई भी सर ना हो, जहाँ इल्म आजाद हो जिंदा हो, जहाँ वटेवर दीवारों से बंधा ना हर बाशिंदा हो। तो एनीवे जब हमने ये ट्रांसक्रिएट की, मुझे अब उसकी पूरी लाइनें याद नहीं है, तो हमने रियलाइज किया कि यार ये तो खुद ही एक स्टैंड अलोन पोएम है। तो विच इज व्हाई वी से वी डोंट ट्रांसलेट दीज थिंग्स, वी ट्रांसक्रिएट दीज थिंग्स। जैसे कि क्रिएट। आप अगर ट्रांसलेटेड सो कॉल्ड कविता भी पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे रियलाइज होगा जैसे कि ये खुद में एक निपुण कविता है। And जी that's how it started. And then, of course, it became a much bigger agenda for me. क्योंकि I'm a little bit of a socialist at heart, और मुझे हमेशा लगता है कि the discrepancies between the educated and the not educated, the poor and the rich in our country is just growing. And well, it pains me as a person. So, in terms of education, इफ यू कैन गिव वट एवर, तो मैं अगर थोड़ी बहुत कविता करता हूँ, तो यार मैं उसमें से कुछ तो निकाल के इनको दे दूं। एंड देन इट बिल्कुल बिकेम लार्जर बिकॉज माय डियर फ्रेंड एंड एल्डर कॉलीग इन ओरिएंट सीमेंट, जनाब दीपक खेत्रपाल, आई टोल्ड हिम कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो ही जंप्ड एट इट, कहते हैं बता मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा साहब थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दूं, लोग रख लूंगा, एक एडिटर है, एक ऑडियो वाला है, एक इंजीनियर है, तो हम सब मिलके फिर ये करते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट ओरिएंट सीमेंट केम फॉरवर्ड, एंड वी नीड मोर कंपनीज लाइक दैट, जो कि आर्ट और आर्ट के मकसद के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप तो बहुत सारी चीजों की होती है, लेकिन समथिंग दैट इम्पैक्ट्स अ सोसाइटी एट दिस लेवल, आई थिंक टू आर्ट is what we are trying to do with the Good Poetry Project. Yes, that's right. And they're wonderful creations. When you listen to them, and especially the Thank you. happy birthday song, which you have transcrited in Sanskrit, वो भी that was just wonderful. Very I nice. guess. थैंक यू वेरी मच। वो भी Yeah. सिंपल सा आइडिया ये था, हमारे मित्र हैं मोहित गुप्ता, वो एक संस्कृत अप्रिसिएशन क्लास चलाते हैं एक गुरु जी के साथ, संपदा नंदा मिश्रा जी के साथ। तो एक बार उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं कि गुड पोइट्री प्रोजेक्ट में आप क्या क्या कर रहे हैं। मैंने बताया जी मैं ट्रांसक्रिएट करता हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज इसको संस्कृत में, दुनिया की सबसे पॉपुलर पोएम है हैप्पी बर्थडे टू यू बाय द वे, हर Yeah, रोज exactly. मिलियंस ऑफ टाइम्स इट्स सung, बट वी डोंट बिल्कुल। रियलाइज दैट वी ऑल सिंग इट इन इंग्लिश, तो व्हाई डोंट वी ट्रांसक्रिएट इट। और संस्कृत डे था, तो हमने उसको संस्कृत में उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया, देन वी sang it, so to say. बहुत ही उम्दा सर, बहुत ही उम्दा सर। कुछ भी लाइक वाइंड अप करने से पहले मैं एक बार आपसे वो आपकी नज्म जरूर सुनना चाहती हूँ, कमीजें। That's been my favorite because it's very rare that you really get, good friends around. You have so many friends, but there are very few, who always stand beside you when you need them. They actually know you. They actually realize, what is going on in your बिल्कुल mind. ठीक कह रहे हैं। और ये मैंने पोम लिखी थी, चंडीगढ़ में थी, आपके शहर में। अच्छा, अरे वाह। इसका इसका लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हाँ जी। की तबीयत खराब थी, तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में था, और ही हैड अ हार्ट अटैक। सो वो 4-5 दिन तक लगातार लेटा रहा, मैं उसके साथ बैठा, उसकी सेवा में था, तो मैं फेसबुक खेलता रहा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, उसने मुझसे पूछा कि भाई मेरे को जरूरत थी तो तुम आ गए थे, तुम्हें जरूरत होगी तो कौन आएगा। और मैंने जब देखी तो मुझे रियलाइज हुआ मेरे पास भी वही 2-3 लोग हैं। वैसे 4-5 हजार लोग हो जाते हैं आपकी फेसबुक लिस्ट में, बिल्कुल लेकिन सर, जब बिल्कुल। जरूरत पड़ती है तो आप वही 2-3 को, तो चलिए वही लिहाजा दो फरमाइए। सफेद कमीजें जी, आपको सुनाता हूँ जी। फिर हम आज का प्रोग्राम इरशाद। के। थैंक यू। ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, 3 सफेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी है। ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, 3 सफेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी है। पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीजें और उठा लाए, पहने ना पहने देखने में तो खरी है। ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं। कभी दशहरे पर 2 मिला करती थी, सारा साल पहनते थे, आजकल तो सरेआम हर रोज मिला करती हैं। आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं। पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है, पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। 3-4 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कभी, तो फेसबुक पर एक के बाद एक नया सिलसिला है, कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। हाँ, कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए,
पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है, और ग्रीन वाली फॉन पैंट के साथ तो किससे किसका मैच कराएं, कौन सी रखें, कौन सी लौटाएं, कौन सी बांटें, कौन सी बचाएं। कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, या चलो छोड़ो, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, कम से कम खोलो तो लगता है कमी कोई नहीं होनी चाहिए, इंसान के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए। पर कमाल है ना साहब, देखिए ना, पर कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है। पर कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है। दो हो, अच्छी हो, सफेद हो, अकेले में हाथ फिर उन्हीं की तरफ जाता है। फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए, फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए। दो हो, अच्छी हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों दोस्ती की कमीज होनी चाहिए। दो हो, अच्छी हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों दोस्ती की कमीज होनी चाहिए। सो दैट वाज बहुत सफेद बहुत कमीजें बढ़िया फॉर यू सर। मिस मल्होत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। And या there's आई one हैव prayer अ that I just want जी, to share. Not written by me, प्लीज of प्लीज, course. इरशाद, Somebody इरशाद, else has written it, but it's been my favorite. दोस्ती पे ही है इरशाद। सर। आज दरवाजे पे लिखा मैंने, कोई भीतर मत आना, आज मैं दुखी हूँ। पढ़े लिखे अच्छा, समझदार लोग वापस लौट गए, भीतर वही आया जो दोस्त था। अरे अरे, सच्चा दोस्त था, सफेद कमीज था आपकी। सफेद कमीज। हाँ, जब भी लिखा होता है बाहर कि मैं दुखी हूँ, दोस्त दोस्त हमेशा पहले एंटर करते हैं, तोड़ के दरवाजा गया, वह कम बख्त, किसने कहा तू अकेले दुखी हो सकता है, नहीं। सही बात है। बिल्कुल But सही सर, I'm बिल्कुल grateful सही। to have great friends, and I think we need to invest in them. That's right, sir. We need to. We need to give time to good relations which are there in our life. That's what they Absolutely, want. Just the absolutely, time. absolutely, absolutely. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। एंड थैंक यू सर, एंड वी आर रियली रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। आपने इतनी बातें की, इतने किस्से सुनाए, इतनी प्यारी नज़में सुनाई हमें, जो हर तरह से ज़िंदगी से जुड़ी हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करती हैं, हमें कुछ सिखाती हैं, कुछ मैसेज देती हैं। एंड द पर्पस दैट यू हैव behind your art that you're sharing with others is commendable. So आप लिखते रहिए, हम सुनते रहेंगे Thank you very और much, मिलते रहेंगे। श्वेता जी। Thank you so much, बहुत बहुत sir. शुक्रिया आपका। And Thank you I'm for having me on your show. I wish everyone who's watching a good evening, and hope you do well. Thank you, sir. And I'm very grateful to my audience who are watching us and still pouring the questions, more and more questions and more comments there in our show. Thank you, audience. And we'll be back again next time with Master, with another Master. I'll still call you that, sir. All right. Thank you very much. Have a Thank good you, evening. sir. Bye bye. Thank you, everybody.